Hello everyone. So in this lecture we will be discussing about ISLM model. So we have already discussed about two markets, that is we have goods market and money market. So with the help of goods market we will be first deriving IS model. IS model means investment saving model, and with the help of money market we will be deriving LM model, where L means liquidity trap, that is money demanded, and M means money supply, and this whole combines the ISLM model. So there are two types of market, money market and goods market, and by goods market we mean all buying and selling of goods and services, and by money market we mean interaction between demand for money and supply of money. So classical economists suggest that these two markets are independent of each other. This was said by classical economists, that the money market and good market do not affect each other. But what happens? But according to the theory of J.M. Keynes, money market affect the goods market, but he did not consider anything about that how goods market affect money market. So after the Keynes, ISLM model was formed by J.R. Hicks in his article Mr. Keynes and Classics in 1937. So here he also explained how goods market affect the money market. So finally ISLM model का जो proper model है वो J.R. Hicks ने दिया था. So now let's discuss about IS model first. So in this lecture we will be completely discussing about IS model, what is IS curve, उसका derivation कैसे होता है, causes क्या हैं shift के, and what is the slope of IS curve. So only these four things we are going to learn in this lecture. Now what is IS curve? IS curve is a set of all those points which show combination of interest rate and equilibrium level of GDP. तो IS कर्व जो आपको शो करेगा, अभी हम बनाएंगे इंटरेस्ट रेट को और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी. सो IS कर्व आपको इंटरेस्ट रेट शो करेगा एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी शो करेगा, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो IS कर्व स्लोप विल बी नेगेटिव. वाई नेगेटिव? क्योंकि इंटरेस्ट रेट, बिकॉज रिलेशन बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, दिस विल बी नेगेटिव. इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम लो होगा, लेस होगा, एंड इंटरेस्ट रेट अगर लोअर होगा सो इट विल बी हायर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम. So IS model always work in the product market only. So before moving further, let's understand what's the relation between rate of interest and investment. So there is an inverse relationship between rate of interest and investment. Higher rate of interest, that means lower level of expenditure, investment expenditure will fall, and at lower interest rate investment expenditure will rise. So इंटरेस्ट रेट अगर क्या होगा, हाई होगा, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल करेगा, एंड इंटरेस्ट रेट अगर लो होगा तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर राइज करेगा. So when rate of interest rises, producer will get capital at higher rate of interest. So this will increase the cost of producer, and due to rise in the cost, profit of the producer declines, and producer will take less interest in the new project, and as a result of this investment will fall. So अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अब फाइनली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को हाई कैपिटल किस पे मिल रही है, एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रही है, एंड दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर. सो इसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर बढ़ेगा, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर बढ़ने की वजह से what will happen, due to rise in the cost, प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है, कॉस्ट बढ़ गई
तो प्रॉफिट जो है प्रोड्यूसर का वो डिक्लाइन करेगा, वो डिक्रीज करेगा। और इस वजह से अब प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो वो प्रोड्यूसर लेस इंटरेस्ट दिखाएगा अपना किसी प्रोजेक्ट में। अगर वो इंटरेस्ट ही कम दिखाएगा, मतलब ये दूसरे इंटरेस्ट की बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं है, मतलब वो ज़्यादा अपना उसका मन नहीं करेगा प्रोजेक्ट में काम करने का, तो रिजल्ट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल हो जाएगा। एंड सिमिलरली अपोजिट विल हैपन व्हेन देयर विल बी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो वो जो प्रोड्यूसर है विल गेट द कैपिटल एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, and due to decrease in the cost, profit of the producer will be increasing and producer will take more interest in new project and as a result investment will increase. So I hope it's clear. Now let's move further. देखो ये इंटरेस्ट रेट है और इंटरेस्ट रेट और आउटपुट की हम बात करें, तो इंटरेस्ट रेट और आउटपुट के बीच का ही जो नेगेटिव रिलेशन होता है इसी को हम IS कर्व बनाएंगे एंड इसको हम डिराइव करने वाले हैं अब हम। लेट्स सी। So guys, let's move towards derivation of the IS curve. So ये मैंने पहले बना रखा है and now we will understand कि पहले क्या बनाना है और कैसे बनेगा ये। So आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 डायग्राम बना देने हैं। ये ऊपर एग्रीगेट डिमांड का है और ये GDP लेवल। देखिए पहले ये एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाया इधर एंड GDP लेवल का कर्व है। अब यहाँ पर जो इनिशियली व्हाट विल हैपन, इनिशियली एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हम बनाएंगे, तो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो y है एंड ये 45 डिग्री की लाइन है, राइट, 45 डिग्री की लाइन होती है। और एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात करेंगे हम, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व होगा C+I, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अभी हम इतना ही लेके चल रहे हैं। सो दैट देखो एग्रीगेट डिमांड कर्व कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और यहाँ एग्रीगेट सप्लाई कर्व कंजम्पशन प्लस सेविंग। सो ओवरऑल वी कैन से इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे और ये आउटपुट हो जाएगा इसका, राइट। सो दिस विल बी आउटपुट लेवल। अब इधर बात करें नीचे हम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच का ग्राफ, वी नो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R1 है तो इन्वेस्टमेंट है I1 एंड यहाँ पर भी इनिशियली देखिए इसी Y1 पॉइंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R1 है तो ये आउटपुट है, इन्वेस्टमेंट कह लो, यहाँ पे आउटपुट वी कैन राइट हेयर इट आउटपुट। तो यहाँ जो आउटपुट है वो है Y1 GDP लेवल, इधर भी GDP लेवल ही आएगा, राइट, और इधर भी GDP लेवल ये सेम है एंड यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ व्हाट हैपेंस, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करने की वजह से इन्वेस्टमेंट क्या हुई, इंक्रीज हुई, हमने अभी पहले ही पढ़ा था। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो नेक्स्ट स्टेप देखो, पॉइंट वाइज देखना ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप ये है कि एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ये I1 थी I2 हो गई, अब C+I था, यहाँ पे I0 मैंने ऐड कर दिया, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई। फर्स्ट स्टेप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, सेकेंड स्टेप क्या हुई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया और अब वो बढ़ गया तो हमारा ये इनकम लेवल, आउटपुट लेवल या GDP लेवल कुछ भी कह लो, ये तीनों भी हमारे बढ़ गए। तो अब ये जो पॉइंट है यहाँ आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से, एंड जब हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे वी गेट आवर IS कर्व। सो आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो आप ध्यान से देख लीजिए इस ग्राफ को, डायग्राम को। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं फर्दर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन IS कर्व। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन IS कर्व। ये जो IS कर्व है जो इन्वर्स रिलेशन बताता है इंटरेस्ट रेट में और GDP लेवल में, या हायर लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो हायर लेवल ऑफ इनकम होती है। तो अब ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से शिफ्ट हो सकता है IS कर्व। तो IS कर्व शिफ्ट होने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको हम सेम मानेंगे, ऑलराइट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेम मानेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़कर
जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है जिसे हम C+I+G+NX भी लिखते हैं, उसमें जितने भी ये कांस्टेंट फैक्टर हैं, मैं पहले आपको इसके एल्जेब्रिक डेरिवेशन दिखा देती हूँ तब आपको जल्दी समझ आएगा. सो लेट अस सी द एल्जेब्रिक डेरिवेशन ऑफ द आईगेस कर्व. सो यहाँ पर क्या y जो कि था हमारा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. ना y इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड को कैसे लिखते हैं, दिस ए बार, ये डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो मैं आपको इसका पहला वाला पार्ट भी सिखाती हूँ. अब ये जो ये ए बार आया है ये कहाँ से आया है, सबसे पहले तो ये बताओ. ये ऑटोनॉमस पेंडिंग है. दिस इज द ऑटोनॉमस पेंडिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड, एक बार हम देख लेते हैं कि आई एस कर्व की एल्जेब्रिक डेरिवेशन क्या होती है, फिर हम कॉजेज ऑफ शिफ्ट पे बढ़ते हैं. सो यहाँ तक मैंने बता दिया था कि हम आई एस कर्व के बारे में पढ़ रहे थे, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में. सो आई एस कर्व शोज द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ आउटपुट सच दैट planned spending equal to the income and planned saving equal to the planned investment. Planned saving equal to the planned investment. Now IS कर्व को समझने के लिए हम दो स्टेप में डिवाइड करते हैं. स्टेप 1 देखिए, इन्वेस्टमेंट डिमांड स्केड्यूल. So till now we assume that investment was entirely exogenous, but now we assume it to be endogenous. Endogenous and negative related to the rate of interest. So when rate of interest is high, profitability of investment project will be low, so investment demand will be low. This we have already understood. Now अब हम इसको जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व को भी समझेंगे. तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व को हम पहले इनिशियली क्या लेते थे कि एक्सोजिनस है, सो इट हार्डली मैटर्स, बट हम उसे अब एंडोजिनस ले रहे हैं और एंडोजिनस लेने की वजह से हम उसे नेगेटिवली रिलेटेड ले रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से. सो नाउ दिस आई विल बी इक्वल टू आई बार, दिस आई बार माइनस बी आई, where b is greater than 0. So this I bar is your investment demand. This is your investment demand, and this I bar is your autonomous investment. Autonomous investment कब होता है, जब आपका इन्वेस्टमेंट, देखो autonomous investment के बराबर तब होगा जब b, or you can say I, rate of interest. Now this B is the responsiveness of investment spending to interest rate, and I, rate of interest अगर 0 होगा तब ये autonomous investment होगा. So relation क्या हो गया, I equals to I bar minus B I, where I, this is your investment demand, this I bar is your autonomous investment, this B is responsiveness of investment spending to the interest rate, and this I is your rate of interest. I hope it's clear. So अब आप इसका डायग्राम देख सकते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, ये देखो ये डायग्राम है. नाउ नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड द स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व. सो हम लगे यार स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व भी पढ़ लेते हैं. सो स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट बी. जो कोफिशिएंट बी था उस पर डिपेंड करता है. अब अगर b का कोफिशिएंट लार्ज है, इफ़ b इज़ लार्ज दैट मीन्स, अगर b लार्ज है, पहली वो नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि इन्वेस्टमेंट विल बी हाईली रिस्पॉन्सिव टू इंटरेस्ट रेट, क्योंकि b क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट रेट. नाउ इफ b इज लार्ज, वैल्यू ऑफ b is large, that means investment will be highly responsive to the rate of interest. Now highly responsive, so this means, what does it mean कि highly responsive है वो rate of interest पे. so इसका मतलब एक small decline होगा interest rate में, small decline होगा rate of interest में, और small decline होने की वजह से क्या होगा, large increase होगा investment में. So इन्वेस्टमेंट शेड्यूल विल बी ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा. जो इन्वेस्टमेंट का स्केड्यूल हमने बनाया था वो एकदम फ्लैट हो जाएगा. फ्लैट होने का मतलब लेस लो. देखो इधर देखो,
ये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, और ये देखो फ्लैट हो गया ना, यहाँ कम भी था तो थोड़ा सा स्टीपर था, वर्टिकल था क्योंकि स्लोप ज़्यादा था, और यहाँ पे फ्लैटर हो गया क्योंकि स्लोप कम हो गया। हाई बी मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिक्लाइन, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन होगा तो इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से जो आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड स्केड्यूल है वो फ्लैटर होगा। क्या होगा? फ्लैटर। यहाँ मैं लिख देती हूँ फ्लैट होगा। दैट मीन्स वी हैव लेस स्लोप। यहाँ तक समझ आ गया? इधर देख लो, ये डायग्राम देख लिया, अब एक्सप्लेनेशन देखिए। नाउ कन्वर्सली इफ बी इज स्मॉल, investment will be low response to the interest rate, and large decline in interest rate will lead to small increase in investment, so investment demand schedule will be more vertical and will be more slow, steeper होगा, you can say. Clear है? Now let's move further. Now let's understand one more thing. A rise in autonomous investment spending. तो जो वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है ना, आई बार, सो अ राइज इन ऑटोनॉमस स्पेंडिंग आई बार विल लीड टू अ शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल टू द राइट. इट शोज दैट एट ईच लेवल ऑफ द इंटरेस्ट रेट firms plan to invest more, and this would be caused by a rightward shift in the investment demand schedule. सो ये क्या कह रहे हैं कि जो इंक्रीज़ है ऑटोनॉमस स्पेंडिंग में, आई बार में अगर इंक्रीज़ होता है तो दिस विल शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल टू द राइट. सो देखो जैसे आई बार है 100 था, ये देखो 100 था, अब 100 से क्या हो गया, इधर 100 से 200 हो गया, 100 से 200 हो गया, तो इंटरेस्ट रेट तो सेम ही है. तो ये आई एस कर इन्वेस्टमेंट कर्व, आई एस कर क्या नहीं कर रही, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया. और ये क्या दिखाता है, इट शोज कि हर लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो सेम है, एट ईच लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट मोर. क्योंकि फर्म्स का यही है कि कोई भी इंटरेस्ट रेट हो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, एंड इसकी वजह से हमारा ये क्या हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है. सो आई होप दिस मच इज ऑल्सो क्लियर. लेट्स मूव फर्दर. Now let's understand step number 2, which is your investment rate and aggregate demand schedule. So हम इन्वेस्टमेंट रेट और एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल के बारे में बात करेंगे. Now जैसे हम ले लेते हैं एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई प्लस जी. अभी हम C प्लस आई प्लस जी ले लो, ठीक है, NX भी ले सकते हैं. अभी आप C प्लस आई प्लस जी लेते हैं. इन्वेस्टमेंट रेट और एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल को समझते हैं. नाउ एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई प्लस जी. नाउ अभी जो सी है, व्हाट इज दिस सी? दिस सी इज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सी क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. नाउ सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, एंड ये जो सी है ये फंक्शन है किसका? वाई डी का. नाउ व्हाट इज वाई डी? वाई डी इज़ योर डिस्पोजेबल इनकम. वाई डी क्या है? डिस्पोजेबल इनकम है. नाउ सी को आप लिख सकते हो सी बार, विच इज़ योर ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस सी वन कह लो या स्मॉल सी, विच इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, and YD is your disposable income, and disposable income means the complete income, उसमें से टैक्स को माइनस कर लो, जितनी भी इनकम है उसमें से टैक्स को माइनस कर लो, स्मॉल टी से लिख देती हूँ मैं, और टैक्स ट्रांसफ़र पेमेंट को ऐड कर लो, जो भी मिला वो डिस्पोजेबल इनकम है जिसे हम खर्च कर सकते हैं, ठीक है. और आई बार का भी हमने समझा, अभी ऊपर ही समझ के आए इतना सारा इन्वेस्टमेंट की कहानी, एंड ये जी बार रहेगा. सो अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. सी प्लस सी वाई माइनस सी टी आर, इसको आप सॉल्व करेंगे. और जब अब ये है ना सी बार आई बार जी बार, इनको एक तरफ ले लो, जो भी चीज़ें कांस्टेंट है एक तरफ ले लो, वो बन जाएगा हमारा ए बार, विच इज़ योर ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, विच इज़ सी बार
प्लस स्मॉल सी इंटू टी आर प्लस आई बार, ट्रांसफ़र पेमेंट भी कांस्टेंट है एंड ये जी बार, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस ये मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इसी के बिहाफ पे हम डिराइव करेंगे अलजेब्रिकली आई एस कर्व को। नाउ अलजेब्रिक डेरिवेशन देख लो आई एस कर्व की। y इक्वल्स टू आई डी, वाई इक्वल्स टू ए बार प्लस सी, दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई। अब ये y माइनस सी, ये जो टर्म है y वाला ये उस तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर बचा a बार माइनस बी आई। वाई कॉमन ले लो, 1 माइनस सी, 1 माइनस टी, ए बार माइनस बी आई, और ये वाई 1 अपॉन में 1 माइनस सी और 1 माइनस टी आ गया। और ये जो टर्म आया ना ये पूरा, ये हम अल्फ़ा जी कहते हैं विच इज़ योर मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर आपका इतना आया, दिस मच पोर्शन इज़ नोन एज मल्टीप्लायर। सो आई होप यहाँ तक समझ आ गया। अब हम स्लोप की भी बात कर लेते हैं आई एस कर्व के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्लोप ऑफ आई एस कर्व ऑल्सो। सो स्लोप ऑफ आई एस कर्व कैसे निकाल सकते हो आप, इसे फर्दर सॉल्व करो। ये अल्फ़ा जी ए बार मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा जी बी आई हो गया, ठीक है। अब अल्फ़ा जी बी आई इधर ले आओ और वाई को इधर ले आओ, इधर ले आए। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करनी है, तो अल्फ़ा जी बी को यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आई क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ए बार अपॉन में बी माइनस वाई अपॉन में अल्फ़ा जी बी। तो स्लोप क्या आया आई एस कर्व का, तो स्लोप जो आया आई एस कर्व का वो आया माइनस का 1 अपॉन में अल्फ़ा जी इंटू बी। देखो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड था उसका जैसे हमने करा था, क्या करा था, आई इक्वल्स टू आई बार माइनस का बी आई, यही था ना। अब इसके अगर हम स्लोप की बात करते तो वह आता है डी आई डिफ्रेंशिएशन अपॉन में इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे, तो आता 1 अपॉन में, ये तो कांस्टेंट था, माइनस का 1 अपॉन में बी। अब इधर ये आया माइनस का अल्फ़ा जी विच इज़ योर मल्टीप्लायर, और ये बी सेम है, बी क्या है वही सेम चीज़ है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द बिहाफ ऑफ द इंटरेस्ट रेट। सो अभी जो हमने पहले समझा था वही अब हम दोबारा समझेंगे तो जल्दी समझ आएगा। सो अब ये जो आपका क्या आया स्लोप आया किस पे डिपेंड कर रहा है, मल्टीप्लायर पे और किस पे, कोफिशिएंट बी पे। पहले ही बताया था कि कोफिशिएंट बी जो है लार्ज होता है तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग सेंसिटिव होती है इंटरेस्ट रेट के बहुत ज़्यादा, और इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रोड्यूस करता है शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड का लार्ज अमाउंट से। क्यों प्रोड्यूस करता है, उसका रीज़न यही है कि इंटरेस्ट रेट जो है आपका क्या होता है, बी लार्ज होता है तो इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होने लग जाता है, जिसकी वजह से देखो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्लाइन होने लग जाता है। मान लो इतना है तो बहुत डिक्लाइन होगा, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और ऊपर जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ये ऊपर हम एग्रीगेट डिमांड का बनाते थे ना, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से, थोड़ा सा गलत बना है, बेसिकली एग्रीगेट डिमांड कर्व में लार्ज अमाउंट का शिफ्ट आ जाएगा। सो एग्रीगेट डिमांड में लार्ज अमाउंट का शिफ्ट आएगा, और लार्ज अमाउंट का शिफ्ट आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लार्ज चेंज होगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में, और आई एस कर्व फ्लैट होगा। अब यही अगर बी स्मॉल होगा तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होगी, आई एस कर्व रिलेटिवली स्टीपर होगा, सेम रीज़न की वजह से। ना मल्टीप्लायर की इफेक्ट की बात कर लें तो हाइयर द मल्टीप्लायर मीन्स लेस स्लोप, एंड लेस स्लोप का मतलब फ्लैट होता है कर्व, ठीक है, लेस स्लोप मतलब कर्व फ्लैटर होगा। और यही मल्टीप्लायर अगर लो हुआ तो कर्व क्या होगा, स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा तो कर्व आई एस कर्व स्टीपर होगा। और अब ये मल्टीप्लायर किस किस बेसिस पे इफ़ेक्ट होता है देखिए। सो मल्टीप्लायर के साइड इफ़ेक्ट कौन है, मल्टीप्लायर कौन इफ़ेक्ट करता है, मल्टीप्लायर को इफ़ेक्ट करने वाले हैं, मल्टीप्लायर क्या था पहले ये बताओ, अल्फ़ा जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस सी 1 माइनस टी। तब यहाँ पे कौन इससे इफेक्ट करेगा, टी क्या है, टैक्स रेट है, और सी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। अब ये टी अगर टैक्स हाई है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये अगर हाई है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मल्टीप्लायर की वैल्यू कम है इट मीन्स आई एस कर्व फ्लैटर है। ऑन द अदर हैंड अगर टैक्स लो है
ये कम है, इन दोनों की वैल्यू कम है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा है, मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब IS कर्व स्टीपर है। वाई स्टीपर? बिकॉज मोर स्लोप, स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा तो IS कर्व स्टीपर ज़्यादा होगा। फ्लैटर ऐसे होता है, स्टीपर ऐसे होता है। सो आई होप ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब हम लास्टली एक टॉपिक बचा था उसे कवर करते हैं और IS कर्व फिनिश हो जाएगा, मतलब IS कर्व का टॉपिक। तो हम डिस्कस कर रहे थे कॉज ऑफ शिफ्ट इन IS कर्व को। तो इंटरेस्ट रेट को छोड़ के जैसे हमारा बिजनेस टैक्स हो गया, सो बिजनेस टैक्स अगर बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, सोचो, टैक्स बढ़ गया, तब टैक्स बढ़ गया तो प्रोड्यूसर तो करेंगे कि लेस प्रेफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगी तो कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एंड अगर टैक्स घट गया तो प्रोड्यूसर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो IS कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, घट गया तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। कंज्यूमर की सेविंग रेट की बात करें तो अगर कंज्यूमर ने डिसाइड किया कि वो ज़्यादा सेव करेगा, कंज्यूमर ने डिसाइड किया कि वो ज़्यादा सेव करेगा, तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग तो कम हो जाएगी, स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो इसका मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी ओवरऑल कम हो जाएगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो IS कर्व लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। अगर कंज्यूमर ने डिसाइड किया कि वो कम सेव करने वाला है, इसका मतलब वो स्पेंड ज़्यादा करने वाला है, स्पेंड ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, IS कर्व राइट में शिफ्ट होगा। तो आई होप ये समझ आ गया। एक्सपोर्ट का भी ऐसा है, एक्सपोर्ट बढ़ गया तो IS राइट में, एक्सपोर्ट घट गया तो IS लेफ्ट में। सो आप ये ओवरऑल डायग्राम देख लीजिए कि क्या क्या इसमें इफ़ेक्ट आते हैं। जैसे हमारा ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, अब ये कम कम होगा और कब ज़्यादा होगा, तो जब IS कर्व राइट में जा रहा है तो किधर जा रहा है, देखो जब आपका एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक हो गई, तो ये बढ़ने की वजह से ये Y2 होगा, इधर आएगा, इधर आएगा ना, देखो तो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जब बढ़ेगा तो आपका IS कर्व किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा ना, IS2 हो जाएगा, यानी कि राइट में शिफ्ट होगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट है। और एग्रीगेट डिमांड अगर कम हुआ, एग्रीगेट डिमांड अगर कम हुआ, इधर देखो कम हुआ, तो आपका IS कर्व जो है वो लेफ़्ट में शिफ्ट करेगा, लेफ़्ट में शिफ्ट करेगा। अब किन किन वजहों से एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह ये है कि अगर टैक्स कम हो जाए तब, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तब, अगर कंज्यूमर डिसाइड करे कि वो सेव करेगा लेस और कंज्यूम करेगा मोर, तब एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइट में शिफ्ट होगा। एंड अगर एक्सपोर्ट हो ज़्यादा, सो इन वजहों से जो है आपका एग्रीगेट IS कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट कर रहा है। लेफ़्ट में शिफ्ट करने के क्या कारण है, टैक्स बढ़ गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो गया, कंज्यूमर ने डिसाइड किया कि वो सेव मोर करेगा, कंज्यूम लेस करेगा, एंड अगर एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज़ कर गया तब। सो आई होप गाइस ये IS कर्व का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।